اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. عزیزان گرامی، سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے. اس سے پہلے جو کل آپ کے سامنے درس میں آیات پیش کی گئی تھیں، ان میں یہ بتایا گیا تھا کہ امت مسلمہ کو مرکزی قبلہ دینے کے بعد آگاہ کیا گیا تھا کہ دیکھو اب سازشیں تمہارے خلاف عروج پر پہنچ جائیں گی اور جنگ ہوگی. جنگوں میں مصائب و آلام آتے ہیں، تم کو صبر کرنا پڑے گا. کل جو آخری آیت پیش کی گئی تھی اس پہ آپ نے دیکھا کہ ایمان کیا اس کی تفصیل پیش کی گئی تھی. آخر میں دو صفات پر خصوصی توجہ دلائی گئی تھی، والصابرین والموفون بعہدہم والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، کیونکہ سب بہت اہم چیز ہے اور ایفاء عہد بھی بہت ضروری ہے. اس ملت کی کامیابی کے لیے آئندہ ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنا ناگزیر ہے. اس وجہ سے دیکھیے آخر میں بھی والصابرین بالبأساء والضراء کہا گیا. اب یہاں سے باقاعدہ فرائض کا بیان ہو رہا ہے، احکام اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. تو سب سے پہلے جس حکم کو بیان ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب. اس کا ترجمہ پڑھیے ذرا سا. بسم اللہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا ہے تم پر برابر کا بدلہ لینا، مقتولوں میں آزاد بدلے آزاد کے، اور غلام بدلے غلام کے، اور عورت بدلے عورت کے. پھر جو شخص کے معاف کر دیا گیا اسے اس کے بھائی ولی کی طرف سے کچھ تو پیروی کرنی ہے مواقع دستور کے، اور ادا کرنا اس کی طرف ساتھ اچھائی کے. یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت. پھر جس شخص نے زیادتی کی بعد اس کے، تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک، اور تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے میں بڑی زندگی ہے. اے عقل مندو، شاید کہ تم بچو قتل و غارت سے. کتب علیکم فی القصاص، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم فی القصاص فی القتلی. اس کا ترجمہ ان کا کیا ہے؟ یہ کون ہے مترجم؟ مولانا مودود صاحب ترجمہ آپ کے پاس ہے؟ جی ہے. ہاں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے. ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستے کے ساتھ خون بہا کر ادا کرے. ٹھیک. آپ ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان لانے والوں، مقتولوں کے بارے میں تم پر مساوات فرض کی گئی ہے. آزاد آزاد کے، غلام غلام کے برابر، اور عورت عورت کے برابر. تو جسے اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معاف ہو جائے تو معروف کے مطابق قرارداد کی پیروی اور خوش اسلوبی کے ساتھ خون بہا کی ادائیگی ہونی چاہیے. یہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے تخفیف اور رحمت ہے. تو جو کوئی اس کے بعد حد سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے قصاص مساوات میں ہے. اے دانش مندو، امید کہ تم خدا کے نافرمانی سے بچو گے. دیکھا آپ نے، دا فرق ہے، ترجمہ میں فرق ہے. محسوس کیا کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ ترجمہ میں فرق ہے. یہ کس کا ترجمہ ہے؟ یہ تفسیر سعدی عبدالرحمن بن ناصر السعدی. یہ تو عربی زبان کے ہے نا، اس کا ترجمہ کس نے کیا ہے؟ فرید خان. مترجم کون ہے؟ یہ مترجم ہے عبد
अब्दुर्रहमान हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ। अच्छा, वो पाकिस्तान वाले जो हैं, ठीक है। तो अब देखिए इन्होंने जो तर्जमा दा साहब हाफिज सलाहुद्दीन साहब तर्जमा दा, फिर पढ़िए, फिर मौदूद साहब पढ़िए। और कोई तर्जमा नहीं है? इब्न कसीर का मारिफुल कुरान में रखिए आप सामने, क्योंकि ये अहम आयत आई हुई है। आज पहली आयत है, बहुत अहम है, इसमें थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। चलिए। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, लिख दिया गया है तुम पर बराबर का बदला लेना मकतूलों में, मकतूलों में, आज़ाद के बदले आज़ाद के और गुलाम के बदले गुलाम। कत्ला के माने क्या है? देखिए कत्ला के माने क्या है? हैं? अब बता सर, कत्ला, कत्ला वाहिद है कि जमा? जमा है, बिल्कुल सही है। किसकी जमा है कत्ला? कत्ल की नहीं, कत्ल की जमा नहीं है वो। किसकी जमा है? हैं? कत्ला जमा है कतील की। कतील बमाना मकतूल, कत्ला जमा है कतील की और कतील बमाना मकतूल। इसी वजह से इन्होंने फिर तर्जमा पढ़े इनका। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, लिख दिया गया है तुम पर बराबर का बदला लेना मकतूलों में। हाँ, देखा आपने, जो मकतूलों किया तर्जमा ना, वो इसी वजह से किया है, क्योंकि कत्ला है, वाहिद नहीं है, जमा। जैसे मर्दा आता है ना, मर्दा किसकी जमा? मरीज की। जरहा किसकी जमा? जरीह की। सरआ किसकी जमा? सरीअ की। उसी तरह कतील की जमा कत्ला। तो मकतूलीन के बारे में, कत्ल के बारे में नहीं। क्या तर्जुमा है इनका? ईमान वालों, फर्ज है तुम पर खसास बराबरी करना मकतूलों में। मकतूलों में, मकतूल का आना ज़रूरी है, मकतूल का आना ज़रूरी है ना। और एक मकतूल नहीं है बल्कि क्या है? जमा है, बुनियादी नुक्ता है। कोई एक कत्ल नहीं हुआ बल्कि कई मकतूलीन हैं। मकतूलों के बारे में, अब मकतूलों के बारे में अब देखिए इनका भी तर्जमा तकरीबन वो है, इन्होंने मकतूलीन के। मौलाना मौदूद साहब का तर्जमा क्या है? ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए कत्ल के मुकद्दमों में क़िसास का हुक्म लिख दिया गया है। बस कीजिए, कत्ल नहीं। देखिए पहली बात बताई हमने ना, ये कत्ल नहीं है, फिल कत्ल नहीं है, बल्कि क्या है? फिल कत्ल नहीं है बल्कि फिल कत्ला है। कत्ला का तर्जमा क्या होना चाहिए? मकतूलीन के बारे में। कोई एक कत्ल नहीं हुआ है बल्कि जमा है, लाशें गिरे हैं। कोई एक लाश नहीं गिरी है, कई लाशें गिरी हुई हैं। उनके सिलसिले में फ़र्ज किया जा रहा है, हुक्म कुछ दिए जा रहे हैं, अहकाम, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने मकतूलीन का तर्जमा किया, ये इसमें जो है ना मौलाना अमीन हसन साहब बिन मौलाना मौदूद साहब के साथ साथ हैं। अजीब गरीब हाल है, मौलाना अमीन साहब ने बड़ी तनकीदें की हैं मौदूद साहब पर, बड़ी तनकीदें करते हैं। जहाँ इनको मौका मिल जाता है मौलाना मौदूद साहब तनकीद कर देते हैं, जहाँ मौका मिलता है इनको शदीद तनकीदें, समझ लीजिए। आप लोग नहीं समझ पाते हैं, कहीं कहीं इन्होंने जो तनकीदें नाम तो नहीं लेते, लेकिन तनकीद समझ में आया था ये किस पर चोट कर रहे हैं। चोट करने बड़े माहिर हैं मौलाना अमीन हसन साहब, लेकिन यहाँ उन्होंने इन्हीं की पैरवी की है, ठीक है ना। लेकिन मुनासिब तर्जमा, हम तर्जमे को देख रहे हैं, बहस तर्जमा अरबी ज़ुबान में है ना। अरबी ज़ुबान में उर्दू को अरबी ज़ुबान के अल्फाज कैसे ढाला जाए जो हू बहू हो, वो उसके करीब तरीन हो। तो करीब तरीन तर्जमा इनका है। देखिए किनका? मौलाना हामिद अली साहब का। और इन लोग भी करीब सबसे ज़्यादा वाज़े तर्जमा, फिर पढ़ दीजिए इनका। इसमें मौलाना कुतुब शहीद का है। सैयद कुतुब शहीद का तर्जमा नहीं है, मौलाना सैयद हामिद अली साहब का तर्जमा है। मौलाना सैयद हामिद अली साहब का तर्जमा है। गैर मामूली आलिम है, ये बहुत बड़े आलिम दीन थे मौलाना हामिद अली साहब। चलिए, ऐ ईमान लाने वालों, मकतूलीन के बारे में तुम पर मसावत फर्ज की गई। मसावा, दो बातें हैं अभी। एक तो मकतूलीन के बारे में, मकतूल कत्ल नहीं बल्कि मकतूलीन के बारे में। अच्छा, अब क़िसास के माने क्या है? देखिए क़िसास के माने अब क्या है? मारिफुल कुरान में क्या दिया गया है? ईमान वालों, फर्ज है तुम पर खसास बराबरी करना मकतूलों में। गोया क़िसास का बराबरी ये ब्रैकेट में होगा। देखिए देखिए, ब्रैकेट में खसास है। अच्छा, ब्रैकेट में क़िसास है जी, या क़िसास असल में फिर ब्रैकेट में? ब्रैकेट में खसास है, बराबरी करना मकतूलों के बाद। अच्छा, मकतूलों में। ठीक ठीक।
क़िसास को क़िसास से किया है ना, और लेकिन फिर उसको जो है उसको वाज़ेह किया कैसे, बराबरी। ठीक है कि नहीं, पहले समझिए बात को। क़िसास माने क्या हो गए, बराबरी। क़िसास माने बराबरी, क़िसास माने मुसावात, क़िसास माने बदला नहीं। पहली बात ही समझिए, क़िसास माने बदला नहीं, बल्कि क़िसास माने बराबरी, मुसावात। तो इनका क्या है, बराबरी। मक़तूलीन के बारे में क़िसास यानी बराबरी। करना मक़तूलों में। हाँ, मक़तूलों में बराबरी करना फ़र्ज है। इनका क्या है, इन्होंने क्या किया, मक़तूलन के बारे में तुम पर मसावत फर्ज की। मसावत। तो दोनों एक तर्जमा हुआ ना, बराबरी या मुसावत। ठीक है मुस्तफ़ा साहब, दोनों तर्जमा एक है। इनका भी क्या है तर्जमा, बराबर का बदला। बराबर का बदला, बराबर का बदला। चलिए बराबर लगाया इन्होंने, है ना। तो हाँ, बराबरी जो है ना, बराबरी का फ़र्ज है। तो ये बुनियादी नुक्ता है। ये कत्ल कोई एक कत्ल नहीं हुआ है, बल्कि क्या है, और ये कत्ल किसका हुआ है, कौन लड़ा है, बोलिए। लड़ाई किससे हो गई है, हाफिज साहब ना। अब ये अहले ईमान का बयान शुरू हो गया, उनका क्लोज। कल जो बताया था ना, अब ये खाता क्लोज हो रहा है उनका। अब अहले ईमान का बयान हो रहा है। अहले ईमान में जो पहला फ़र्ज बयान किया जा रहा है वो ये है, क्या पहला फ़र्ज है, कि तुम पर मक़तूलीन के बारे में बराबरी फ़र्ज की गई है। क़िसास माने गोया बराबरी, बराबरी फ़र्ज की गई है। तो क़िसास माने हुआ बदला नहीं, बल्कि बराबरी। और किसके बारे में, मक़तूलीन के बारे में। मक़तूलीन के बारे में बराबरी फ़र्ज की गई, ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। ये तसादुम कहाँ हो गया, ये खूनरेज़ी किसके दरमियान हुई, मुस्तफ़ा साहब बताइए। हाँ गुड, अहले ईमान आपस में लड़ गए हैं, मसला ये है। मुशरिकीन की बात नहीं हो रही है, मुशरिकीन की बात नहीं हो रही, अहले ईमान आपस में लड़ गए हैं और खूनरेज़ी हो गई है। दो गरोह आपस में लड़ गए हैं। अब दोनों गरोहों में जो है अब क्या है, बराबरी, बराबरी होनी चाहिए। ठीक है ना। ये नहीं कि अगर हमारे यहाँ 5 आदमी मारे गए हैं हमारे कबीले के, तो हम उस कबीले के जो है देत जब लेंगे तो हम 10 आदमी बराबर लेंगे, ऐसा नहीं है। पहले ये जाहिलियत होता था, एक कबीला एक आदमी दूसरे कबीले की देत जो है क्या कई आदमी बराबर लेता था। ये जाहिली कानून नहीं चलेगा। ये आयत किसी खास वाक़ये की तरफ इशारा। हाँ, आप देखिए ना, ये तो इतनी बात हो रही ना, कि इतनी बात हो रही ना कि अगर वाक़या न भी हुआ हो, लेकिन पहले हिदायत दी जा रही है ना, क्या, अगर इज्तिमाई खूनरेज़ी हो जाए, सूरह हुजरात में भी है, वइन ताइफ़तान मिनल मुमिनीन ततलू, है कि नहीं। ये मुसलमान भी आपस में लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते, लड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं मुसलमान भी। तो आपस में खूनरेज़ी अगर हो गई है तो आपस में खूनरेज़ी के बाद क्या होगा, बदला होगा, मसावत होगा। मसावत किस चीज़ में, अब दो मसावत किस चीज़ में, कत्ल का बदला, कत्ल। ओ मक़तूलीन के बारे में कत्ल के बदला कत्ल, ये हुई ना। अब देखिए अल-हुर्र बिल-हुर्र माना क्या होगा, अल-हुर्र बिल-हुर्र का तर्जुमा आप करिए। अब आज़ाद बदले आज़ाद के, आज़ाद बदले आज़ाद के। देखिए ये तर्जुमा है, आपका तर्जुमा साथ के बदले आज़ाद। आज़ाद के बदले आज़ाद। और तर्जुमा देखिए, ये तर्जुमे में आकर मौलवी साहब साथ हो गए लोग। आप क्या है, आजाद आदमी ने कत्ल किया हो तो उस आजाद ही से बदला लिया जाए। ठीक है, वही मतलब है ना, आज़ाद के बदले आज़ाद, उससे आज़ाद से बदला दिया, बात हुई वही ना। ठीक है ना। ये सब तर्जुमे देखिए एक साथ हो रहे हैं। अब आप पढ़िए तर्जुमा। आजाद आजाद के बराबर, बराबर है, बदले में नहीं, आज़ाद आज़ाद के बराबर है। इस कबीले का आज़ाद, उस कबीले का आज़ाद, दोनों बराबर हैं। समझ गए कि नहीं आप। अल-हुर्र मुक़ास्सम बिल-हुर्र, क़िसास के माने बराबरी। मौलाना ने देखे किया, मौलाना शफी साहब ने, है ना, इन्होंने भी किया बराबर। तो बराबरी होगी इसमें, आज़ाद बराबर है आज़ाद के। समझ गए कि नहीं, आज़ाद आजाद बराबर है, ये किया ना। आगे फिर मैं बोलूं,
गुलाम गुलाम के बराबर गुलाम गुलाम के बराबर है और औरत 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 के बदले है। ये हो गई बात ना, वल उनसा बिल उनसा। ऐसा नहीं है। अब देखिए मतलब क्या है, किस चीज़ में बराबरी। अब दूसरा सवाल हुआ, ये किस चीज़ में बराबरी है? बोलिए किस चीज़ में, बोलिए अब किस चीज़ में बराबरी? इंसान के नफ्स की यानी इंसाफ ये बराबरी कत्ल की हो रही है। मियार के एतबार से हर कबीला बराबर है, ये बताना। बराबरी है ना, हर कबीला बराबर है। तो किस चीज़ में बराबरी, जो क़िसास ली जाएगी ना, बराबरी किस चीज़ में बराबरी? ये है असल मतलब। कत्ल करने में बराबरी, बदले में बराबर। बदले में बराबरी, मसावात में बराबर। मसावात के माने बराबरी है। जान के बदले जान। जान के बदले जान। देखिए ये चीज़ है, जान के बदले जान है। ठीक कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। जान के बदले जान का हुक्म सूरह बनी इसराइल में आ गया है। वला तक़्तुलुन नफ़्स लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ वमन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तान नसीरा। जिसने किसी को नाहक कत्ल किया है उसे बदला लिया जाएगा। ये हुक्म आ चुका है, जान के बदले जान। कहाँ? सूरह बनी इसराइल में हुक्म आ गया। फिर उसी हुक्म का इहाता क्यों किया जा रहा है? और यहाँ कत्ल एक नहीं कत्ल हुआ है, इज्तिमाई खूनरेज़ी हुई है। तो फिर कैसे बदला लिया जाएगा और जिसमें बराबरी हो? बोलिए, यहाँ 10 आदमी इधर कत्ल हुए, 10 आदमी उधर, दोनों में, तो ये तो बराबर साबर हो गया। एक तरफ 5 हुए, एक तरफ 10 हुए, तो फिर क्या होगा? एक तरफ 5 हुए, दूसरी जानिब 10 हो गए, तो फिर क्या हो गया? कैसे बराबरी होगी? बोलिए, हमको बताइए, किस चीज़ बराबरी होगी? 5 को इनमें 5 को मारा जाएगा, फिर किसको 5 को मारेंगे आप? सवाल है ना। इज्तिमाई हो गई खूनरेज़ी, लड़ गए आपस में, गुत्थम गुत्था हो गए, तो 5 इधर मरे, 10 उधर में मरे जी। तो जब 5 है तो 5 तो बराबर हो गए, ठीक है ना। जो 5 बच रहे हैं उनके साथ क्या होगा? उनका बदला कैसे होगा? बराबरी कैसे होगी? उनका क़िसास को दिया जाएगा। कैसी क़िसास? माल के जरिए या ये बात है। देखिए बात, गोया दियत का मसला बयान हो रहा है। किस चीज़ का मसला बयान? जान के बदले जान का मसला नहीं बयान हो रहा है, बल्कि दियत का मसला बयान हो रहा है। आगे उस खोल रहा है। समझ गए कि नहीं आप लोग? ये दियत का बदला हो रहा है। मसावात, दियत में मसावात, दियत में बराबरी होगी। ये नहीं कि ये कबीला जो बड़ा ऊंचा कबीला है, इसकी दियत जो है ना, गुलाम की दियत आज़ाद के बदले, नहीं, यह नहीं है। आज़ाद बराबर नहीं हो सकती। और वो कबीला बेचारा कमज़ोर है, तो उसका आज़ाद मारा गया है, तो वो जो है उसकी दियत जो है गुलाम के बराबर हो जाएगी। आपको मालूम है कि गुलाम की दियत और आज़ाद की दियत दोनों का फ़र्क है ना। कितना फ़र्क है? अगर गुलाम है तो कितनी दियत? 50 ऊँट। और अगर जो है आज़ाद है तो उसकी दियत कितनी है? कितनी? 100 ऊँट हैं। फिर उसमें भी कुछ है, कितने जो है बच्चे हों, कितने जवान हों, कितनी दुधारी हों, सब उसकी तफसीलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। तो मालूम ये हुआ मक़तूलीन के बारे में बराबरी फ़र्ज़ की जा रही है। किस चीज़ में बराबरी? ज़ुबैर साहब, किस चीज़ में? दियत में। दियत का मसला बयान हो रहा है। बात वाज़ेह हुई कि नहीं? दियत, वरना वो फिर बात उलझेगी, क्लियर नहीं हो सकती। आप गौर करते रहें, क्लियर नहीं हो सकती। क्योंकि आगे वाला बयान देखिए। अब आगे वाला बयान क्या हो रहा है? तो जिसे अपने भाई की तरफ से कुछ माफ कर दे, कुछ माफ कर दे। फमन उफ़िय लहू मिन अख़ीहि शैउन, तो वो शख्स जिसके लिए माफ कर दिया गया हो उसके भाई की तरफ से कुछ क्या माफ किया जाएगा? हाँ, जाहिर है दियत ही में ना, कि जान में कुछ क्या माफ किया जाएगा? बोलिए, कुछ नहीं। जाहिर है किस चीज़ का बयान होगा? फमन, ये लफ्ज़ खुद बता रहा, फमन उफ़िय लहू मिन अख़ीहि शैउन, वो शख्स जिसके लिए माफ कर दिया गया। मन उफ़िया का से मुराद कौन होगा? कातिल, जिसके लिए माफ, उसके भाई की तरफ से, किसके? मकतूल के वरसा की तरफ से कुछ माफ कर दिया गया, वली मकतूल की जानिब से, ठीक है ना। वली मकतूल की जानिब से दियत में कुछ तखफीफ कर, कुछ माफ़ी हो गई हो, यानी 100 ऊँट के बजाय 50, 75, 80 जितना है, या 10, 20 या पूरा माफ करते हो सकता है।
तो आगे बता रहा फत्तबाउम बिल मारूफ, तो क्या करना है, फत्तबाउम बिल मारूफ, तो इत्तिबा करनी है किसमें, खून बहा में इत्तिबा करनी है किसमें, अरे जो माफ़ी हो गई, जितना तय हो गया है उसकी इत्तिबा करो, और उसकी वजाहत कर, वो अदाउन इलैहि बेihसान, और उसको तुम भले तरीके से अदा करो। और अदा करना है, इत्तिबाम बिल मारूफ की वजाहत किसके जरिए, वाव के जरिए, और अदा करना कैसे, बेहतरीन तरीके से अदा करना है, खुश उसलूबी के साथ अदा करना है, टाल मटोल नहीं, हीला हवाले नहीं, तदबीर के जरिए कोई और बहाना लगा नहीं, कुछ नहीं। वह अदाउन इलैहि बेihसान, ज़ालिक तख़फ़ीफ़ुम मिन रब, ये तख़फ़ीफ़ है किसकी जानिब से, तुम्हारे तख़फ़ीफ़ है। वरना फिर जाहिर है अगर ये न होता, ये देत का मसला न बयान होता, फिर मारा जाता, कितना मसला में पैदा हो सकता था। ये अल्लाह ताला के क्या तख़फ़ीफ़ है, और तख़फ़ीफ़ की वजाहत किससे कर रहा है, रहमा, यही यानी तख़फ़ीफ़ क्या है, रहमत है। आपको मालूम होगा शरीयत इस्लामी की एक खुसूसियत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शरीयत नाजिल की गई है फितरत इंसानी के मुताबिक है, इंसानों पर जबर नहीं है। और शरीयत मूसवी जो थी क्या थी, शरीयत ईसवी तो कुछ शरीयत नहीं है, कानून कौन सा था, हज़रत ईसा का कोई कानून नहीं है। हज़रत ईसा की सिर्फ क्या है, अम्साल है। उन्होंने जो दावत दी किस चीज़ की, तौरेत के अहकाम की तनफीज़ की दावत दी उन्होंने, अलग से कोई हुक्म नहीं लाए। असल शरीयत किसकी थी, हज़रत मूसा की शरीयत थी। तो मूसा की शरीयत में तो तख़फ़ीफ़ देत नहीं थी, समझ देख नहीं आप, तुम्हारा जान का मतलब जान ही। यहाँ क्या है, शरीयत इस्लामी फितरत इंसानी के मुताबिक है। चुनांचे आप देखेंगे जगह जगह कुरान मजीद देखा था जहाँ अहकाम बयान करता है, वो इसको खोल कर बयान करता है कि ये अल्लाह ताला जो है तुम पर वो बड़ा बोझ नहीं डाल रहा है, बल्कि हल्का बोझ डाला जा रहा है तुम। अब आप देखिए उसमें सूरह निसा में कुछ अहकाम दिए हैं, फिर युरीदुल्लाहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्कुम, युरीदुल्लाहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्कुम व ख़ुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे अहकाम रास्ता हल्के दे तुम पर बाढ़ न डाले, जिस तरह उसने बाढ़ डाला किस पर, अब बोल दीजिए आप, जिस तरह उसने बाढ़ डाला है, ज़बरदस्त बाढ़ डाला किस पर, यहूद पर। मूसवी शरीयत में बड़ी जो है वो उसी कुरान में कहता है इसर व अगलाल है। और इस नबी की आमद के सिलसिले में कहा कि वो नबी आने वाला है जिसकी सिफात तौरेत में पढ़ते हो तुम, क्या है, या अमरुहुम बिल मारूफ, जो उन्हें मारूफ का हुक्म देगा, व यनहाहुम अनिल मुनकर, और क्या करे, व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, पाकीज़ा रोज़ियाँ उनको हलाल करेगा। पाकीज़ा रोज़ियाँ हराम थी बदमाशी की वजह से, कुछ फुक़हा के तशद्दुदात की वजह से, कुछ अंबिया बनी इसराइल की वजह से जब इन्होंने नाफरमानियाँ की हैं, तो अल्लाह का ज़ालिक जज़ैनाहुम बिबग़यहिम, हमने उनकी बगावत सरकशी की वजह से उन पर निहायत मुश्किल अहकाम नाफिज कर दिए, उनकी बगावत की वजह से। तो ये पैगम्बर कहा कि अब वो पैगम्बर आने वाला है, वो आएगा, वही इस बोझ को उतारेगा, इस जंजीर को काटेगा। तो व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिम अल खबाइस, और उन पर हराम करेगा किसको, खबाइस को, जो उनकी जिस्मानी अखलाकी चीज़ों को, अखलाक को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं, सबको वो हटाए, हराम कर देगा। फिर आगे कहता वैज़ो अनहुम इसरुल अगलाल, और उनसे इसर को, इसर माने भारी बोझ हटाएगा, वल अगलाल, अगलाल माने बेड़ियों काट के फेंकेगा। तो ये रसूल इनका मोहसिन आज़म था, इस रसूल को मानना चाहिए था, ईमान लाना चाहिए था, मगर अफसोस कि इस पर ईमान नहीं ला रहे हैं, जबकि मोहसिन इंसानियत है, ये रहमतुल लिल आलमीन सारी इंसानियत के लिए। उसमें सबसे ज़्यादा रहमतुल लिल आलमीन किसके लिए, इन आयात की रोशनी बता सकते हैं आप, किसके लिए, यहूद के लिए। यहूद के सबसे बड़ा है, मगर आज भी देखिए यहूद सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मोहतरम के, जो रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल आलमीन सबसे ज़्यादा दुश्मन ये बने हुए हैं। ये अजीब व गरीब बात है। आप देखेंगे कि यहूद पर जो गुस्ल फ़र्ज जनाबत की हालत में, जी पाकी का एक ही तरीक़ा है यहूद के यहाँ, क्या, गुस्ल करें, ठीक है ना,
لیکن اس شریعت میں ذرا دیکھیے تخفیف اتری ہے. کیا تخفیف ہے اس شریعت میں؟ غسل اور وضو کی جگہ حافظ صاحب تیمم. دیکھا آپ نے تیمم کیا ہے؟ اس شریعت میں تخفیف ہے. یہ رحمت کا مظہر ہے. یہ شریعت رحمت خداوند کا اعلیٰ نمونہ یہ پیش کرتی ہے. وہ رحمت للعالمین. قرآن رحمت ہے، ہدایت اور رحمت ہے قرآن مجید. اس وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رحمت کا پہلو ہے. تیمم کی جب آیت فرض ہوئی تو آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ طوفان اٹھایا کس نے؟ سب سے زیادہ طوفان اٹھایا کس نے؟ یہود نے اٹھایا ہے، جس کا ذکر جو ہے سورہ نساء میں ہے. وہ کہتا ہے قرآن مجید واللہ عالم باعدائکم، جو طوفان اٹھا اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. من الذین ہادوا، ارے ان لوگوں کو جنہوں نے یہودیت اختیار کی، جنہوں نے تعریف کی ہے. من الہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہ جو دشمن اللہ کے، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی کہ وضو اگر پانی نہ ملے، کوئی مسافر ہو، ضرورت پڑ جائے غسل کرنے کی، ضرورت پڑ جائے وضو کرنے کی، تو تیمم کافی. فتنہ اٹھایا انہوں نے، فتنہ اٹھایا. کیا فتنہ اٹھایا زبیر صاحب؟ کیا فتنہ اٹھایا؟ یہ کیسا نبی ہے، ایک کیسا قرآن ہے، ایک کیسی شریعت ہے صاحب. وہ سوچئے جی دنیا داری میں رات بھر رہے اور پانی کچھ نہیں تو 2 ہاتھ مار لیجیے بس پاک. یہ کوئی نبی ہے؟ یہ کوئی شریعت ہے؟ ارے صاحب یہ انبیاء کا مذاق ہے، شریعتوں کا مذاق ہے. یہ انہوں نے طوفان اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا، دیکھیے وہاں بھی کہا تخفیف. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے، وہ بار نہیں اٹھا سکتا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں اس سورہ جو بقرہ چل رہی نا، اس کے آخر میں آیت کون سی ہے یاد ہے آپ کو؟ اس کا آخری، اس آخری آیت کا جو حصہ کچھ پڑھیے کیا ہے؟ لا یکلف اللہ لہا ما کسبت وعلیہا. اب اس امت کے دل کی آواز کیا ہے؟ ربنا ان نسینا. آگے ربنا ولا تحمل علینا اسرا. ہے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو بوجھ تو نے پرانے قوموں پر، اگلی قوموں ڈالا تھا. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی. ہم پر وہ بوجھ گرا بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کے سکت نہیں ہے. واعف عنا، ہمیں معاف کر. واغفر لنا وارحمنا، ہم پر. یہ دعا ہے عاجزی کے ساتھ، ان کے سارے کے ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں تخفیف نازل ہو رہی ہے، تخفیف نازل ہو رہی ہے. یہ رحمت خداوندی. اسی وجہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا الفاظ کیے ہیں، استعمال کیے. فاتباع بالمعروف وادعوا الیہ باحسان ذالک تخفیف. میرے یہ تخفیف. اور آگے کیا؟ رحمت. یہ شریعت کیا ہے؟ انسانوں کے لیے رحمت ہے. اور ہمارا نبی اس کی صفت کیا ہے؟ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس کی صفت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ حریص علیکم ما عنتم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رؤوف رحیم ہے. اس وجہ سے اس کی شریعت میں رحمت کا پہلو غالب ہے. چلیے آگے کیا ہے پھر بھائی؟ فمن اعطى بعد ذلك. اس کے بعد بھی اگر کوئی سرکشی کرے گا تو پھر کیا ہے؟ اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اس کے بعد سرکشی کیا ہے؟ معاہدہ طے ہو گیا، دیت لے لی گئی، پھر اگر قاتل نظر آ جائے اس کو مار ڈالا جائے، بولیے تو پھر کیا ہے؟ یہ سرکشی ہے، یہ بغاوت ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہے. وہ بچ نہیں سکتا، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. پھر کہہ رہا ہے اشفاق صاحب وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ. اے مسلمانوں تمہارے لیے برابری میں کیا ہے؟ زندگی ہے. برابری میں زندگی ہے، اس قصاص میں زندگی ہے. زندگی قصاص میں یحییٰ صاحب، زندگی قصاص میں کیا مطلب؟ سکون زندگی میں عدل ہو جائے گا. برابری جب تم رکھو گے اس میں جی، فدیہ میں جب برابری ہوگی دیت میں تو کیا ہوگا؟ اس میں زندگی ہے. زندگی کا مطلب بتائیے، تھوڑی وضاحت کیجیے. زندگی
اس میں زندگی ہے. انسان کو جو ہے اس کی عزت محفوظ رہے گی, اس کی زندگی محفوظ رہے گی, امن ہوگا. جی اس میں زندگی ملے گی, معاشرے کو زندگی ملے گی, سماج کو زندگی ملے گی. ہر شخص حفاظت, اپنا تحفظ وہ محسوس کرے گا کہ ہمیں تحفظ مل رہا ہے, ہمیں حفاظت مل رہی ہے, ہماری جان, ہماری آب سب کیا ہیں, محفوظ ہیں. اس کا برابری میں کیا ہے, زندگی ہے. اچھا یہ بتائیے, میں 3 صحابے کا اور سوال ہے, ذرا سا چبھتا ہوا سوال ہے کہ سب سے پہلے صاحب یہاں اس کا دیت کا مسئلہ بیان کر دیا. قرآن میں جا کتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی نا, یتلو علیکم ویعلمکم الکتاب ہے نا, اور تمہیں تعلیم دے گا کس کی, کتاب کی. کتاب کے معنی کیا بتایا تھا ہم نے, قانون کی. جب قانونی گفتگو کر رہا تو سب سے پہلے کس کا ذکر چھیڑ دیا قرآن مجید نے, کس کا, قصاص. یہ کیوں بھائی قصاص کا ذکر آ گیا سب سے پہلے, یہ کیا خاص بات ہے حافظ صاحب؟ یہ قصاص کا ذکر سب سے پہلے, ارے تفصیل سے نماز کا ذکر ہونا چاہیے, جی روزے کا ذکر ہونا چاہیے تھا, یہ قصاص کا ذکر کیسے ہو گیا؟ چلیے ان دنوں قبائل میں ایک لامحدود انتقام کی چل پڑتی تھی روش, یہ یعنی اس سوسائٹی میں یہ موضوع بہت اہم تھا. ٹھیک کہا آپ نے, بالکل صحیح فرمایا کہ اصل میں وجہ اس کی ہے کہ اس کو جی کہ یہ جو ہے جان, مال, عزت, آبرو کسی کی محفوظ نہیں تھی. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے میں حملہ کر جاتا تھا, لوٹ لیتا تھا, قبائل کے قبائل تباہ ہو رہے تھے. اس وجہ سے یہ جو ہے نا ان کو وہ جو ہے لوٹ مات ان کا پیشہ تھا, غارت گری ان کی زندگی تھی. اس وجہ سب سے پہلے اس مسئلے کو چھیڑا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا سورہ مائدہ میں کہا, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس. جس نے ایک شخص کو بچا لیا اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا, سارے انسانوں کی زندگی کی ضمانت دی اس نے. اور ایک کو قتل کرنا سارے انسانوں کو قتل کر دینا ہے. ایک انسان اگر قتل ہوتا ہے سارے انسانیت قتل ہو جاتی ہے. اس بنیاد پہ اس کو چھیڑ رہا ہے ان کا. یہی بنیاد ہے, اگر اور آپ دیکھیں غور کریں, یہی بنیاد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے, آخری خطبہ حجۃ الوداع کا جو موقع ہے, تقریباً 1 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں عرفات کے میدان میں. عرفات کے میدان میں جو سورہ نازل ہو رہی ہے, کون سورہ نازل ہو رہی ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جی عرفات کے میدان میں ایک سورہ نازل ہوئی, پوری سورہ نازل ہوئی, سورہ مائدہ. سورہ مائدہ عرفات کے میدان نازل ہوئی سن 10 ہجری میں. 1 لاکھ صحابہ موجود ہیں, 1 لاکھ صحابہ موجود ہیں. ان میں وہ آیتیں جو ابھی ہم نے پیش کی, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا. یہ سورہ مکمل نازل ہوئی. اور پھر اس کی روشنی میں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا ہے, خطبہ دیا ہے. ایک روز اور بتاتا ہے, وہ خطبہ لاجواب خطبہ ہے, شاہکار خطبہ ہے. وہ ادب کے لحاظ سے, بلاغت کے لحاظ سے دنیا کے کسی زبان میں بڑے بڑے خطیب لکھی اتنا شاہکار خطبہ آپ کو نہیں مل سکتا ہے. علامہ شبلی نعمانی جو زبردست ادیب بھی ہیں, زبردست مفکر بھی ہیں, انہوں نے صاف صاف لکھا ہے دنیا کی کسی زبان میں اس کا نمونہ نہیں مل سکتا اس خطبے کا. اللہ کے رسول نے ایک خاص انداز خطبہ دیا ہے. ایک ایک جملہ جو ہے آپ سمجھے, آپ عزت سے لکھنے کی ضرورت ہے اس کو. ایک ایک جملہ کیا کہا ہے. یہ آخری سال ہے, ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تم سے نہ ملوں, لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا. پھر کیا کہتے ہیں, اسلوب تھا دیکھیں خطابت کا, ایک خاص انداز ہے. عربی زبان بھی اس سے ناشنا ہے, ان کے ادبا اور بلغا بھی بالکل ناشنا ہے, بیگانہ ہے اس اسلوب سے. کہتے ہیں ایو بلد ھذا, ایو شہین ھذا, ایو مقام ھذا, ایو یوم ھذا. یاد ہے آپ کو یہ کون سا مہینہ, کون سا دن, کون سا مقام ہے؟ جی یہ کیوں سوال کیا؟ ایک خاص انداز سوال. جی توجہ مرکوز کرنے کی, توجہ مرکوز کرنے کے سوال کا انداز ٹھیک ہے کہ یہ کون سا مہینہ, کون سا دن, اور کون سا شہر, کون سا مقام ہے. ٹھیک ہے نا. صحابہ کرام ہر جملے پہ کیا کہتے تھے؟ واللہ عالم ورسولہ,
अल्लाह जानता रसूल, वो चाहते बोल सकते नहीं, वो जानते थे कि ये उस्लूब है अल्लाह के रसूल का। वो किसी पर वो नहीं कर हाँ हाँ फल, हम वो लोग होते फट तो बोल देते जी फट तो, लेकिन वो ज़बान रसूल को, ख़याल रसूल को वो खूब वाकिफ़ थे। वो रसूल का अंदाज़ क्या है जानते थे। वो सहाबा कराम हैं और ज़ुबानदान हैं, वो खूब जानते हैं। अल्लाह व रसूल आलम तो ख़ुद कहते हैं, क्या ये शहर अशहुरुम नहीं है, यौमुन नहर नहीं है, क्या ये मक्का की सरजमीन नहीं है? कहाँ, बिल्कुल है अल्लाह के रसूल। तब क्या कहा था आपने, अब बता दीजिए आगे वाला जुमला। कहा जिस तरह ये घर मुहतरम